Good morning friends. Today we will learn about amines in organic chemistry. As you know that amines are the organic compound which are derived from ammonia by replacement of either one or more hydrogen atom. For example, if you take ammonia and replace one hydrogen atom by an alkyl group, then we get RNH2. Similarly, if you replace two hydrogen atoms by alkyl groups, then we get R2NH. Now, if we replace all the three hydrogen atoms of ammonia by three alkyl groups, then we get R3N as a product. Now, these hydrogen atoms may be replaced by alkyl group or may be replaced by aryl group like C6H5 phenyl group, like this C6H5NH, C6H5, C6H5N, C6H5, C6H5. So hydrogen atom may be replaced by alkyl groups, may be replaced by phenyl groups. So these class of compounds are called as amines, as they are derived from ammonia by replacing hydrogen. Now we have quaternary ammonium salt also, that is derived from ammonium salt. As we know that ammonium salt is NH4 plus X minus. So if we replace all the four hydrogen atom by four alkyl groups, may be same, may be different, then we get R4N plus X minus. These are called as quaternary ammonium salt. Clear? So these are the amines. Now we will learn about the classification of amine, how the amines can be classified. Okay. Classification of amine. Children, amine can be classified into two broad categories. One is aliphatic amine, aliphatic amines, and second is aromatic amines. Now, aliphatic and aromatic amines can further be classified as primary amine, secondary amine, and tertiary amine. Primary amine, that is 1 degree, secondary amine 2 degree, and tertiary amine 3 degree. This classification of amine as primary, secondary and tertiary is based on number of substitution in ammonia. For example, if one hydrogen is substituted, then we get RNH2 or ARNH2, maybe aliphatic, aromatic.
So this shows only one hydrogen is substituted in ammonia, we get primary amine. So if two hydrogen atoms of ammonia are substituted, then we get R2NH. If all the three hydrogen atoms are substituted, then we get R3N, tertiary amine. So primary amine, if one hydrogen atom of ammonia is substituted, secondary 2, and tertiary, all the three hydrogen atoms of ammonia are substituted either by alkyl group or by aryl group. Sometimes question is asked, children, what is the difference in the classification of alcohol as primary, secondary and tertiary, and the classification of amine as primary, secondary and tertiary. So now the classification of alcohol is totally different. The classification of alcohol as primary, secondary and tertiary is based on nature of carbon atom. So this primary, secondary and tertiary is based on, किस पर based है? Nature of carbon atom bearing OH group. जैसे अगर हमारा OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पर अटैच्ड है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर हमारा OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। एंड इफ इट इज अटैच्ड ऑन टर्शियरी कार्बन, then this is tertiary alcohol. So this is primary, present on primary carbon, secondary carbon and tertiary carbon. So primary, secondary and tertiary alcohol. But in case of amine, irrespective of the nature of carbon atom bearing NH2 group, bearing NH2 group or NH, the amines are classified on the basis of number of substitution in ammonia. For example, अगर हम यहाँ पर एक कंपाउंड लें, देखिए जैसे CH3, CH, CH3, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। लेकिन अगर यहाँ पर ये सेकेंडरी जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अगर ये अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो ये एमीन प्राइमरी होगा, भले प्राइमरी अमीन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट है। तो हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्कोहल का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि OH ग्रुप किस कार्बन एटम पर है, नेचर ऑफ कार्बन एटम क्या है। लेकिन जो एमीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन अमोनिया कितना हुआ है। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ वी विल learn about the naming of amines. How the amines can be named. Naming. So there are two systems of naming in amines also. One is common system. One is common system. बच्चों कॉमन सिस्टम में एमीन एज ए सफिक्स यूज होगा टू द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। मतलब आप एल्किल ग्रुप का नाम लिखिए, एल्किल ग्रुप, और उसमें एमीन ऐड कर दीजिए एज ए सफिक्स। तो क्या बन जाएगा? एल्किलामीन। ये वन वर्ड नेम होगा। दिस इज कॉमन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्राइमरी अमीन लें जैसे CH3NH2, तो यहां पर एल्किल ग्रुप का नाम एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या बनेगा? मिथिल। तो ये हो गया मिथाइल, और अब इसमें एमीन एज ए सफिक्स जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया बच्चों? मिथाइल एमीन। सिमिलरली अगर आप CH3, CH2, NH2 ले लें तो यहां पर दो कार्बन हो गए, इथाइल ग्रुप होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइलामीन। ठीक है।
अब अगर मान लीजिए वो हमारा सेकेंडरी अमीन है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है CH3NH और दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, तो ऐसे में हम डाई एज ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका नाम हो जाएगा डाई, फिर एल्किल ग्रुप का नाम मिथाइल और फिर एमीन। लेकिन अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए CH3NH और C2H5, तो दोनों डिफरेंट हो गए, तो ऐसे केसेस में कॉमन सिस्टम में एमीन की जो नेमिंग करते हैं एन एल्काइल एल्किलामीन, एन एल्काइल। अब एन एल्काइल एज ए प्रीफिक्स आ रहा है, एन एल्काइल मतलब एन कैपिटल लिखा जाएगा नाइट्रोजन और एल्किल ग्रुप वो रहेगा जो स्मॉलर है। तो जैसे यहां पर इस कंपाउंड में ये स्मॉलर एल्किल ग्रुप एन से अटैच्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा एन, कैपिटल एन, फिर डैश और उसके बाद छोटे वाले एल्किल ग्रुप का नाम मिथाइल और उसके बाद बेस नेम यहां से तो इथाइलामीन, इथाइलामीन। ठीक है, इसी तरह से टर्शियरी अमीन की भी नेमिंग करेंगे कॉमन सिस्टम में। मान लीजिए CH3N, CH3 और CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। अब मान लीजिए हम एक ऐसा टर्शियरी अमीन ले रहे हैं जिसमें दो सिमिलर ग्रुप और एक डिफरेंट ग्रुप आ जाए, हुआ ओके। तो जो दो स्मॉलर एल्किल ग्रुप हैं वो एज ए प्रीफिक्स आएंगे विद लिंकेज, तो लेकिन लिंकेज आपको दोनों बार लिखना पड़ेगा N, N, ऐसे NN, फिर डैश, फिर डाई मिथाइल हो गया NN डाई मिथाइल, और फिर जो बेस नेम है वो लार्जर एल्किल ग्रुप से डिराइव होगा इथाइलामीन, इथाइलामीन। ओके, अब ये भी हो सकता है कि ये जो तीन ग्रुप इसमें लगे हुए हैं ये तीनों डिफरेंट हो, तो ऐसे केसेस में जो दो स्मॉलर एल्किल ग्रुप हैं, ठीक है, वो तो एज ए प्रीफिक्स आएंगे और जो लार्जर एल्किल ग्रुप है वो बेस नेम को डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर है तो ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल, तो ये दोनों छोटे ग्रुप हुए और ये बेस नेम डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब इन दोनों में जब इसको हम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे N डैश इथाइल, N डैश मिथाइल और फिर प्रोपाइलामीन। तो बच्चों इस तरह से कॉमन सिस्टम की नेमिंग हुई। नाउ वी विल लर्न अबाउट IPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ एमीन्स। तो IPAC सिस्टम में क्या करते हैं बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल IPAC सिस्टम। तो इन IPAC सिस्टम, इन IUPAC system, amines are named by using suffix, यहां सफिक्स यूज होगा और जो सफिक्स हम यूज करेंगे वो सफिक्स क्या यूज करेंगे, एमीन टू द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये एल्केन है मान लीजिए और इसमें एमीन आप जोड़ दीजिए तो ई ड्रॉप करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एल्केनामिन। ये भी वन वर्ड नेम होगा, ठीक है। अगर ये एल्कीन है तो एल्कीनामीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। अब हमने यहां पर जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं इनकी नेमिंग IPAC सिस्टम में हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला वाला कंपाउंड है, देखिए इसमें NH2 ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका मतलब एमीन हुआ। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन से क्या बनता है, मेथ, तो ये मीथेन हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों मीथेन, और मीथेन में एमीन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ई ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि दोनों वाबल, ये वाबल से एंड हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, तो ये तो हमारा
सफिक्स है तो ई ड्रॉप करिए तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनामिन, वन वर्ड नेम। क्लियर। सिमिलरली इसका नाम 2 है तो इथेनामीन, इथेनामिन। ठीक है। अब इसका नाम, अब यहां पर ये सेकेंडरी अमीन है तो सेकेंडरी अमीन का हो जाएगा एन एल्किल एल्केनामीन, एन एल्काइल एल्केनामीन। तो एन एल्काइल में क्या होगा कि जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप है वो एन के साथ लिया जाएगा, एन। अब स्मॉलर एल्किल ग्रुप दैट इज मिथाइल, और जो बेस नेम है एल्केनामीन वो लार्जर एल्किल ग्रुप से डिटरमाइन होगा। तो 2 कार्बन है इसमें लार्जर में, तो एथ हो गया, इथेन हो गया, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेनामिन। ठीक है। सिमिलरली अगर ये टर्शियरी है और तीनों डिफरेंट है तो ठीक है, एन एल्किल एल्केनामीन, तो एन इथाइल एन मिथाइल, और बेस नेम लार्जर एल्किल ग्रुप से डिटरमाइन होगा तो इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा प्रोपेनामीन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन। हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगर कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, मान लीजिए, चलिए आप लोग नाम करिए, डू द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 NH2, ये कंपाउंड है। ठीक है। एल्कीन एमीन, एल्कीनामीन। अब हमें देखिए डबल बॉन्ड भी है और एमाइनो ग्रुप भी है, तो अगर हम प्रायोरिटी सीक्वेंस में जाएं तो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसाइल हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, ईन, आइन, हेलो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, एल्किल, फेनिल। तो एमीन प्रायोरिटी में आ रहा है, एल्कोहल, एमीन, ईन, आइन, तो ये प्रायोरिटी में आ रहा है। तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे उस कार्बन को लोएस्ट फिगर मिले जिससे ये ग्रुप अटैच्ड है। तो हो जाएगा 1 2 3 4। इसका मतलब टोटल इसमें कितने कार्बन हुए, 4। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट, ब्यूट। अब ब्यूट के बाद फिर प्राइमरी सफिक्स ईन, लेकिन ईन की पोजीशन क्या है, 2, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 एमीन, या ब्यूट 2 इनामीन। क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनामीन। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को लेंगे बच्चों। लेट अस सी द नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। तो मान लीजिए ये ऐसे हैं, रिंग, इस पर डायरेक्टली NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, या NH2 ग्रुप साइड चेन में भी हो सकता है, लाइक दिस। तो चलिए इन दोनों की नेमिंग करिए फटाफट। तो ये बेंजीन का एमीन है, बेंजीनामीन। इसको फिनाइल ग्रुप में एमीन जोड़िए, फेनिलामीन, या इसका नाम हो जाएगा बेंजीनामीन। बेंजीनामीन को कॉमन सिस्टम में एनालीन भी बोलते हैं। एनालीन कॉमन और IPAC दोनों ने माना जाता है। अब यहां पर अगर देखें तो NH2 ग्रुप साइड चेन में है, तो यहां पर जो रिंग आ रही है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगी, फेनिल। तो ये इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, और यहां से मिथेनामीन, एक कार्बन है तो मिथेनामीन, फिनाइल मिथेनामीन, ये नेमिंग होगा। अब मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है एरोमेटिक ग्रुप्स में, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, और ये यहां पर NH2 है, यहां पर Br आ गया, ठीक है। तो अब इसका नाम इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन है, तो जब इसको आर्थो ब्रोमो एनालीन लिखेंगे, आर्थो ब्रोमो एनालीन, तब तो ये कॉमन नाम हो जाएगा। रिलेटिव पोजीशन यूज कर ले रहे हैं आप आर्थो, लेकिन जब इसी को 1 और 2, अगर इसको 2 ब्रोमो एनालीन लिखेंगे
तो ये आयुपैक नेम हो जाएगा आईपीएसी। तो एनिलीन कॉमन और आईपीएसी दोनों सिस्टम में नाउन यूज होता है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो अगर आप एक्चुअल नंबर यूज कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन से नहीं, उसको एक्चुअल पोजीशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा आईपीएसी नेम। और रिलेटिव पोजीशन ले रहे हैं आर्थो, मेटा, पैरा, तब वो कॉमन नेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम एमीन्स की नेमिंग करेंगे। नाउ वी विल टेक द प्रिपरेशन ऑफ एमीन। Preparation, how the amines can be prepared. Preparation, बच्चों इसमें सबसे इजियर मेथड है। फर्स्ट इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। और नाइट्रो कंपाउंड को एमीन में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वो होता है बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करके या ऑक्सीजन रिमूव करना है। ओके, अब आप देखिए, अब मान लीजिए आपके पास ये नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये आईपीएसी नेम है, नाइट्रो एरीन नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और इसको आपको एमीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करेंगे, कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन, राने निकिल, पोरस निकिल और पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। दानेदार निकिल यूज होगा, उसको राने निकिल, या फिर यहां पर हम मेटल टिन HCl या आयरन HCl का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में जो नाइट्रो ग्रुप है, ऑक्सीजन रिमूव होगा, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है रिडक्शन, हमें एनिलीन मिल जाएगा। इस मेथड से हम एलिफैटिक एमीन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है, इसको रिड्यूस कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा एलिफैटिक एमीन मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास नाइट्रोबेंजीन नहीं है, तो इसको आप बेंजीन से बना सकते हैं। बेंजीन का नाइट्रेशन कर दीजिए, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 लेकर के, ठीक है। तो ये आपको एक रूट भी मिल गया, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन and then nitrobenzene to aniline. So this is a good method to amine. Now we will take another method. Next, this one is from nitrile. From nitrile. Nitrile क्या होते हैं, साइनो कंपाउंड। साइनो कंपाउंड्स आर कॉल्ड, ठीक है, नाइट्राइल कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा नेमिंग भी ले लेंगे नाइट्राइल का। जैसे मान लीजिए हमारा ये है कंपाउंड CH3CN, तो साइनो हुआ तो ये नाइट्राइल हुआ। लेकिन जब नाइट्राइल, इसका साइनो कंपाउंड इन आईपीएसी सिस्टम दे आर कॉल्ड एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन को डिटरमाइन करने में CN के भी C को काउंट करोगे, तो 2 कार्बन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, क्लियर। लेकिन ई जो होगा यहां पर ये रिटेन रहेगा, ठीक है, इथेन नाइट्राइल हो गया। अब इसको एमीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, मेथड इज वेरी सिंपल। और इसको एमीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सीधे रिडक्शन कराना है। मेथड का नाम है बाय रिडक्शन, और यहां पर रिडक्शन के लिए आप LAH, व्हाट इज LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर LAH लिख लीजिए, और यहाँ पर जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 और NH2। इस मेथड से भी हम एलिफैटिक, और ये बेंजोनाइट्राइल है, रिडक्शन और
ये बेंजिल एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिनाइल मीथेन अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड हुआ बच्चों। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट, दैट इज वेरी इजी मेथड, जिसको हम बोलते हैं एमोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? एमोनोलाइसिस। इसमें जो एमोनोलाइसिस है, इन एमोनोलाइसिस में दिस एमोनोलाइसिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा हेलोएल्केन है उसके CX बॉन्ड को अमोनिया के द्वारा क्लीव किया जाता है। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन बाय अमोनिया। तो यहां ब्रेकडाउन किस बॉन्ड का हो रहा है? CX बॉन्ड का। किसके द्वारा हो रहा है? एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के द्वारा। तो जब CX बॉन्ड ब्रेक होगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के द्वारा, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां पर RNH2 और HX ये मिल जाएगा। सो नाउ वी गेट प्राइमरी अमीन एज ए प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रहे कि जो प्राइमरी अमीन यहां पर बना हुआ है ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो ये अगर यहां पर दूसरे हेलोएल्केन मॉलिक्यूल से, फिर यहां पर ये डेल पॉजिटिव होगा, डेल नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, फिर इस पर अटैक करेगा तो ये R2NH बना देगा। अगेन दिस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये सेकेंडरी अमीन फिर दूसरे हेलोएल्केन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना देगा? टर्शियरी अमीन बना देगा। यहां पर HX रिमूव होगा, यहां भी HX रिमूव होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन तीनों मिल जाएगा। और अगर हेलोएल्केन एक्सेस में है तो ये टर्शियरी अमीन अगेन ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और फिर हमें लास्टली क्या मिल जाएगा? R4N+X- क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। एक्चुअली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जो जो अमोनिया है ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और ये अटैक करता है इस पर, तो ये बनाता है RNH3+X- एल्किल अमोनियम आयन। तो ये बन गया। अब ये जो एल्किल अमोनियम आयन यहां पर बन रहा है, अगर इसका रिएक्शन हम किसी बेस से करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में और साथ में NaX और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें जैसे मान लीजिए कि अमोनिया को हम एक्सेस में ले लें, अगर अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एल्किल अमोनियम साल्ट और फिर इसके बेसिफिकेशन से हमें प्राइमरी अमीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम हेलोएल्केन को एक्सेस में लेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी ये सब मिल जाएंगे, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। क्योंकि इस मिक्सचर में जो कंपाउंड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होंगे जिनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर अमीन। अगर हमें किसी एक अमीन की जरूरत होगी, किसी मान लीजिए हमें प्राइमरी अमीन की जरूरत है, तो ये मेथड अच्छा नहीं होगा क्योंकि इस मेथड में मिक्सचर ऑफ अमीन बन जाता है। क्लियर? ओके, नाउ अगर हमें मान लीजिए प्योर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन बनाना हो फिर तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो अमोनोलाइसिस मेथड है इसका हम यूज नहीं करेंगे, बट हम यूज किसका करेंगे? एक दूसरा मेथड है बच्चों, बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको हम गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑल्सो, गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन है क्या? पहले इस रिएक्शन के बारे में आप ये जानकारी कर लीजिए कि ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले
तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बाय दिस मेथड प्योर प्राइमरी और एलिफेटिक एमीन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब हम कोर्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है। बच्चों यहां पर हम फथैलिमाइड लेंगे। फथैलिमाइड लिखने के लिए आप देखिए बेंजीन रिंग लीजिए और इसके 1 और 2 पोजीशन पर C डबल बॉन्ड हो लीजिए और ये जो कार्बोनिल कार्बन है इनका कनेक्शन आप इनको NH से जोड़ दीजिए। ये आपका फथैलिमाइड है, ठीक है। चूंकि फथैलिमाइड का ये बॉन्ड पोलर है, हालांकि ये इतना भी पोलर नहीं है कि ये अपने आप टूट सके, तो सबसे पहले इसका रिएक्शन हम KOH से कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये डेल माइनस और ये H प्लस OH माइनस है, तो ये अपने पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों करते होंगे ये आप सोचिए। ऐसा इसलिए करते हैं, पोटेशियम साल्ट में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि ये आसानी से डिसोसिएट होके हमें ये न्यूक्लियोफाइल फथैलिमाइड आयन हमें दे दे। फिर इसका रिएक्शन हम हेलोएल्केन से करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों यही सोचना है कि ये हेलोएल्केन जो हम ले रहे हैं ये सिंपल होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये बिगर है और अगर ये हेलोएल्केन प्राइमरी है और सिंपलर है तो ये बैक साइड से अटैक होगा, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहां पर जो एक इंटरमीडिएट बन जा रहा है वो क्या बन जा रहा है, इस तरह से है और ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो और ये N और यहां से जुड़ गया हमारा एल्किल ग्रुप, ठीक है, और KX यहां पर ये बाई प्रोडक्ट होगा। अब इसी का हमें क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है, ठीक है, बेसिक मीडियम में। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करेंगे तो देखिए हाइड्रोलिसिस पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड पोलर है तो ठीक है, ओके, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ओके। अब वाटर में क्या होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो OH माइनस कहां जाएगा, C प्लस पर और H प्लस कहां आएगा, N पर। तो अब यहां पर देखिए अगर OH आएगा तो ये बन जाएगा वापस ये, क्लियर, और यहां पर OH आ गया, यहां पर OH आ गया, प्लस यहां पर N पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2H प्लस लेगा तो ये बना दिया RNH2, आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। यही है प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में आप जो फथैलिक एसिड बन रहा है ये क्या है, फथैलिक एसिड, इसको थैलिक एसिड भी कहते हैं, पीएच साइलेंट रहता है। इसको वापस आप फथैलिमाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, अमोनिया से ट्रीटमेंट करके अमोनियम साल्ट बन जाएगा, उसके बाद आप हीट कर दीजिएगा तो ये सीधे फथैलिमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेथड आप समझ लीजिए कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हम बना सकते हैं। तो ये कोर्स ऑफ रिएक्शन हुआ, फथैलिमाइड है, इसको पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये डिसोसिएट हो सके और न्यूक्लियोफाइल दे सके। ये न्यूक्लियोफाइल अनहिंडर्ड, इसीलिए यहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी हेलोएल्केन नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि फिर ये हिंड्रेंस से जो हमारा फथैलिमाइड आयन है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो C पर अप्रोच नहीं कर पाएगा। फिर ये हमारा N एल्किल फथैलिमाइड बन गया और फिर N एल्काइल फथैलिमाइड की हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, या यहाँ पर हाइड्रोजेनोलाइसिस भी हम कर सकते हैं जहां पर हाइड्रोजीन से इसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यहाँ पर बॉन्ड पोलर है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी और फिर हमें फथैलिक एसिड और प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन मिल जाएगा। और इसके बाद जो फथैलिक एसिड यहाँ का जो बाई प्रोडक्ट है उसको वापस हम इनिशियल जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो इससे एसोसिएटेड होता है कि क्या हम इसके द्वारा एरोमेटिक एमीन बना सकते हैं कि नहीं। तो इस मेथड से एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एरोमेटिक एमीन
cannot be prepared by this गैब्रियल फतेलिमाइड सिंथेसिस। रीजन आप सोच सकते हैं कि आपको अगर एरोमेटिक बनाना है तो यहां पर क्या लेंगे, हेलोएरिन लेंगे। चूंकि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल वो भी लार्जर ग्रुप है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट रिएक्शन कि हम इस मेथड से एरोमेटिक एमीन बना सके। सो एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज हेलोएरिन्स आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।